السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز اور آج ایک اور اسپیشل ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، کیونکہ برسات کا موسم ہے، بارش رمجم برس رہی ہے، لیکن اس موسم کو انجوائے کرنے کے بجائے ہم لوگ ڈوبے ہوئے شہروں کے بارے میں خبریں دیکھ رہے ہیں اور سیلابی صورتحال ہے۔ ایک جانب تو شہر ڈوب رہے ہیں، دوسری طرف سیاست بھی شاید ڈوب ہی رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے وہ جاری ہے، لیکن اس میں بڑے مزیدار قسم کے کھانے بھی آتے ہیں، وہ آرام سے کھانے بھی کھاتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ جماعت اسلامی کا دھرنا بھی 7 روز سے جاری ہے۔ اور میں یہ جاننا چاہوں گی، ہمارے بہت سینئر رپورٹر ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہے، کہ ان کا بجلی کا بل کتنا کم ہوا، اس دھرنے سے ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جو ہے اصغر چودھری صاحب، اور میں چاہوں گی کہ دھرنے میں گئے تھے، وہاں کی صورتحال بھی ہمیں بیان کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسما، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ، آپ اتنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے آئے اور دھرنے پہ آپ موجود رہے اور آپ نے ہر روز کی ہمیں اپڈیٹ دی۔ تو کتنا بجلی کا بل کم ہوا ہے اور کیا فائدہ ہوا ہے؟ اب تو میں نے سنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان نے پورے ملک میں ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ جی بالکل، اور میں اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس قوم کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ اگر آپ نے ریلوے کے اندر سفر کرنا ہے، میں پاکستان ریلوے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ٹرینیں آتی ہیں جو لیٹ ہوتی ہے ہمیشہ، جی اگر آپ نے ٹرینوں کے اوپر سفر کرنا ہے، اس حکومت نے آپ کو 50 روپے کا ریلیف دیا ہے۔ اکانومی کلاس کے جو ٹکٹس ہیں اس کے اوپر پورے 50 روپے کا ریلیف جو ہے۔ تو چودھری صاحب ایسا کرتے ہیں، ٹکٹ کٹواتے ہیں، گھماتے ہیں، اتنا بڑا ریلیف ہم کیوں ضائع کریں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنے بڑے ریلیف کو سنبھالے کس طرح۔ اور آپ نے بجلی کی بات کی ہے، بجلیاں تو بڑی گر رہی ہیں، لیکن وہاں پر بھی وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے وزیر اعظم چین سے سو نہیں پا رہے ہیں۔ انہیں بار بار جو تکلیف ہو رہی ہے وہ آئی پی پیز کی تکلیف ہو رہی ہے، بجلی کے بلوں کی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے پورے 10 دنوں کا ریلیف دیا ہے۔ جو آپ کے جولائی کے بل ہیں، اگست کے بل ہیں، پورے 10 دن تک آپ اپنا بل نہ جمع کروائیں، جو تاریخ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، 10 دن بعد آپ بل جمع کروائیں، لیکن بل آپ کو پورے جمع کروانے پڑیں گے، کیونکہ حکومت کی مجبوری ہے۔ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، نئے جو ہے وہ ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیں گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں کے اندر فیول بھی تو ہے۔ اور پھر ایک چیز جو اس دن ہوئی میڈیا کے اوپر آیا جی کہ اراکین پارلیمنٹ بل نہیں دیتے ہیں، اس کے اوپر اراکین پارلیمنٹ بڑے سخت برہم ہوئے، اپنے بل لے کر وہ سامنے آ گئے اور پھر اسپیکر کے پاس بھی گئے اور اپنی تحریک استحقاق بھی جمع کروائی۔ یہاں پر ہم یہ ضرور وضاحت کر دینا چاہتے ہیں، جو اراکین پارلیمنٹ یہ معصوم ہوتے ہیں بیچارے، یہ بل نہ جمع کروائیں تو انہیں این او سی نہیں ملتی ہے، اور این او سی نہ ملے تو الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا ہے۔ ان کی تو مجبوری ہے، ان کی اسی طرح مجبوری ہے جس طرح فائلر پھنسے ہوئے ہیں ٹیکس کے معاملے پہ۔ تو بات آپ نے دھرنے کی جی، میرا دھرنے کے اوپر علامتی بھوک ہڑتال بھی جاری ہے، دوسری جانب پی ٹی آئی کی بھی، تو آپ اس میں بھی موجود تھے۔ کیسا یہ علامتی بھوک ہڑتال ہے اور اس کے کیا وہ مطالبات ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہو رہے، لیکن روزانہ وہاں بیٹھ کے گپ شپ ہوتی ہے، ہڑتال تو کم نظر آتی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں ذرا اس کو میں بالکل ذرا سنجیدگی سے اس کا میں جواب دوں گا۔ علامتی بھوک ہڑتال ہے، اور کوئی بھی ایک جو آپ کا ممبر پارلیمنٹ ہے نا، چاہے وہ ایم پی اے یا ایم این اے ہے، وہ لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہو کر آتا ہے۔ اور بظاہر تو ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ شروع میں جب انہوں نے، آج ان کا بھی 7واں روز تھا، کہ جب انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کی تو ہم سمجھ رہے تھے شغل میلہ لگا رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بڑا اثر ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کو بڑا پک کر رہا ہے، لوکل میڈیا کی تو چلیں پھر کوئی تھوڑی سی مجبوریاں ہوگی، پرنٹ میڈیا میں وہ رپورٹ ہو رہا ہے، مسلسل رپورٹ ہو رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا میں بہت زیادہ وہ رپورٹ ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک ان کا احتجاج ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ان کی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج جب میں گیا اس میں ڈے فرسٹ سے اس احتجاج کو کور کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک شغل میں لئی ہے بس، ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، حاضریاں بھی لگتی ہیں۔ طے یہ ہوا تھا کہ 20 اراکین قومی اسمبلی اور 5 اراکین سینٹ روزانہ بیٹھیں گے۔ بدقسمتی سے آج وہاں پر ایک شاندانہ گلزار صاحبہ تھیں، ایک علی محمد خان صاحب تھے، اور 2-3 ایم این اے، ایک وہ جمیل صاحب تھے جو عمران خان صاحب کے حلقے سے جیت کے آئے ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ سینیٹر ایک سیف اللہ ابڑو صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو باقی کو، اور جمشید دستی صاحب، ہاں جمشید دستی تو آپ کو پتہ ہے
मिडिल क्लास कम्युनिटी का बंदा है, वो वहाँ पर मौजूद थे। उस तरह आज ना चेयरमैन साहब थे, ना लीडर ऑफ अपोजिशन थे, ना असद कैसर साहब थे। पता चला जी कि वो खान साहब से मुलाकात के लिए गए हुए हैं अडयाला जेल। अब अडयाला जेल जब जाते हैं तो फिर तो आपको पता है कि वहाँ से आते आते बड़ा टाइम लगता है। तो ये धरना तो इस तरह जा रहा है। दूसरा पिंडी का धरना जो है, हाफिज साहब, माशाल्लाह हाफिज नईम साहब का बहुत नाम है, शायद आपको पूरे तरीके से नहीं पता है। धरने के मामले में आप यकीनन बहुत छोटी थी उस वक्त जब काजी हुसैन अहमद साहब ने 99 में यहाँ पर या 98 में गालबन धरना दिया था, और वो काजी साहब के सर के ऊपर लाठियाँ भी बरसी थी, और उस वक्त एक नारा निकला था, जालमो काजी आ रहा है। तो जमात धरना देने में तो बड़ी माहिर है, और उसने PhD करके रखी हुई है, बड़ा कामयाब धरना जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया पूरी लाइन पर लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बिजली की होगी, ना पानी की होगी, मज़ीद कोई सहूलियात जो हैं वो सारी मुयसर होंगी। तो धरना तो उनका भी बहुत अच्छा सब आपने धरनों की सारी वजाहत की और 7 रोज़ा धरनों के बारे में बताया। अवाम ये जानना चाहती है कि पुरअमन एहतजाज पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन साहब अगर इस भूख हड़ताल के बाद मुज़ाकरात हो जाते हैं, इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है ये एहतजाज धरने सिर्फ अपने मौक़िफ़ मनवाने के लिए, आवाम के लिए नहीं है। नहीं, देखें, जमात इस्लामी का तो पूरी सियासत स्टेक के ऊपर लग गई है। ठीक है, जमात इस्लामी एजेंडा लेकर आई है कि बिजली के बिलों में रिलीफ। IPPs एक अफरीद बने हुए हैं, और IPPs के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल बड़ी बड़ी बढ़कें जो मर्जी मारें। मुफादात देखें ना, जो जहाँ पर मुफादात जुड़े होते हैं ना, वहाँ पर कोई बात नहीं करता है। ज़रा KL Agri का देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के में कौन लोग मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की बेटे और बेटियाँ वहाँ पर, और सैलरीज कितनी ले रहे होंगे, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, ये उनका सैलरी पैकेज है वहाँ पर। तो वहाँ पर कौन उनके खिलाफ वो एहतजाज के ऊपर जाएगा। जमात ने बात तो बहुत बड़ी कर दी, आप देखना ही है कि वो क्या IPPs वाला पाकिस्तान के मसाइल का सबसे बड़ा जो गढ़ है, गहरा गढ़ है, वो है IPPs। अगर जमात इस्लामी इस गढ़े को बंद नहीं कर पाती है तो फिर तारीख में ये याद रखा जाएगा कि शायद जमात इस्लामी के मकासद कुछ और थे और वो इसलिए आई थी। तो वो उनके आप आगे गढ़ और पीछे खाई वाला मामला है। जहाँ पर आपने बात की अलामती भूख हड़ताल की, तो मेरे खान साहब ने उस दिन कहा जी कि फ़ौज के नुमाइंदे से जो हम बात करेंगे इनसे बात नहीं करेंगे। मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई, बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन PTI हैं, उनसे बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने चूँकि अपनी प्रेस टॉक में ये कहा था कि हम खिड़की खुली रखना चाहते हैं ताकि ताज़ा हवा और रोशनी भी आए। तो मैंने कहा जी एक मासूम सा सवाल है मेरा, मुझे ये बता दीजिए कि ये खिड़की सिर्फ फ़ौज के लिए खुलेगी या कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी खुलेगी। तो उन्होंने तो बड़ा खुल के जवाब दिया, नहीं जी ये खिड़की सिर्फ फ़ौज के लिए है, और बाकी तो पता है कि हम MQM से भी बात नहीं करते, पीपल्स पार्टी से भी नहीं करते, नून लीग से भी नहीं करते, तो बाकी सियासी जमातों से करेंगे। आप उनसे भाई कोई पूछे, हुकूमत में तो ये मौजूद है इस वक्त, नून लीग और पीपल्स पार्टी मौजूद है, तो आपने क्या BJP से जाके बात करनी है वहाँ पर। और दूसरे नंबर पर एक चीज़ मैं दोहराना चाहता हूँ, आपको याद होगा नॉर्थ हाउस गुजरात में, आपका भी तल्लक गुजरात से है, वहाँ पर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, वो जो कलम था वो नॉर्थ हाउस में लगा हुआ है। ठीक है, और वही आसफ अली जरदारी उसी नॉर्थ हाउस में जाके बैठते हैं और चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इसका मतलब है कि सियासतदान कभी भी दरवाजे बंद नहीं करते, रस्ते बंद नहीं करते। मुजाहरा रखना पड़ता है क्योंकि सियासत है, मुल्क के मुफाद के लिए आपको बहुत सारी जगहों कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन एक बात हैरत अंगेज़ है चौधरी साहब कि ये वही फ़ौज थी जिसके बारे में सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बर्पा किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी फ़ौज के बारे में एक गलत तासुर सामने लाया गया। आप उस फ़ौज से तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो आपकी सियासी जमातें हैं जिनकी बरादरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, इसमें कितना तजाद नज़र आता है आपको? देखिए खुला खुला ये तजाद है ना। शुक्र है कि हमारा शुरू दिन से यही मौक़िफ़ था कि फ़ौज हमारी है और हमारी सरहदों की पासमां है। अच्छा, फ़ौज के गैर आइनी किरदार के, जब जनरल फैज़ के किरदार के ऊपर हम बात करते थे, जनरल बाजवा के ऊपर, तो यही हमारे PTI के दोस्त हमें कहते थे कि हम गद्दार हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, हमारी करैक्टर असैसिनेशन हुई है। उस वक्त तो ये कहते थे हम गद्दार हैं। अब हम तो उसके सिर्फ आइनी किरदार के ऊपर बात करते थे। और भाई आपने तो ऐसी की तैसी फेर के रख दी अपने अदारे की।
उसे कटहरे में आपने ला खड़ा कर दिया। आप ज़रा वो आपने पिछले दिन देखा था ना कि वो फायर वाल वगैरह का कुछ जी, जी, सिलसिला जी, भी आया हुआ है और कोई थोड़ी सी पकड़ बड़ी दकड़ उसमें भी हो रही रूमर्स है। भी आ रही हैं कि शायद किस लिए पूरा सोशल मीडिया जो है वो कंट्रोल किया कंट्रोल जाए। नहीं, वो एक और वो पता चला है कि वो खातून पकड़ी गई जी, हैं जी, और 11 लाख 14-15 अकाउंट्स लाख थे। उनके अकाउंट्स थे। तो जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो आप ज़रा वो उन्होंने वो खिड़की खोल दी है बातचीत के लिए। ये देखें, ये पाकिस्तानी सियासतदानों की गलती है। ये सारे पैदावार ही उसी गमले के जी। हैं जिसे हम पिंडी का गमला कहते हैं। बिल्कुल। अगर और जो पिंडी के गमले के नहीं हैं उनके ऊपर आपने गद्दारी के फतवे लगाए। आप सरदार अता मैंगल को देख लें, बुगटी साहब को देख लें। बुगटी साहब को तो वैसे भी कहता था एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। जी। आप गफ्फार खान को देख के, खान अब्दुल वली खान को देख लें, अचकज़ई साहब। महमूद खान अचकज़ई को देख लें, सिंध की जो लीडरशिप है, आपने तो जो नहीं थे इस क्यारी से निकले हुए, उन्हें तो आपने सारी उम्र गद्दार बनाए के रखा। अब क्यों शेख रशीद साहब, वो जो हमारे फर्जंद पिंडी हैं, वो बार बार कहते हैं वो गेट नंबर 4 गेट नंबर 4। और शहबाज शरीफ साहब देखें, मैं कहता हूँ अब जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह नहीं है, शहबाज शरीफ साहब उनसे भी बढ़ के हैं। हालांकि इलेक्शन में उन्होंने कहा था ना साड़ी गल हो गई है, और अब लतीफ़ा भी ये आया हुआ है कि बड़े भाई साहब पूछते हैं शहबाज यार दस तेरी गल की हुई सी, ऐ तो तू दस हो। बड़े भाई आ गए हैं लेकिन वो एक तरह से नहीं भी आए हुए। नहीं वो तो बिल्कुल उनका पता हमें साफ नजर आ रहा है। वो कहीं पर हमें किसी मंजरनामे में नहीं है, और उनके जितने साथ के लोग हैं वो भी हमें नहीं नजर आ रहे हैं। आस्ते से आपने रेलवे की बात की, तो जब रेलवे साद रफीक के हाथों में था तो काफी बेहतर कारकर्दगी थी, और इस वक्त वो मौजूद नहीं है, मंत्री आम पे नहीं है, राना सनाउल्लाह मंत्री आम पे नहीं है। एहसन इकबाल का बयान आया कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे इस्तीफे की बात आई थी, मामलात जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम अगले वीलॉग पे जरूर बात करेंगे। चौधरी साहब आपने वक्त निकालना है, और जाने से पहले अगले वीलॉग में हम ये भी बात करना चाहेंगे और आप मेरी रहनुमाई करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो पुराने साथी हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान हो गए और भी कुछ ऐसे दोस्त जो रूठे हुए दोस्त हैं, वो सरेआम सोशल मीडिया पे आके ये बड़ा दीदा दलेरी से कहते हैं कि 2018 के इलेक्शंस की सीट्स भी जो है वो पिंडी से आई थी, नॉमिनेट भी किया गया था, कैंडिडेट तक वहाँ से फाइनल हुए थे। फिर जब आप उनकी बेस पे हुकूमत बना चुके और हुकूमत बनाने के बाद आप अपनी ही फ़ौज को आंखें दिखाने लगे, तो ये एक खुला फ़र्क नज़र आता था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इसके बारे में ज़रूर रहनुमाई हासिल करेंगे। सवालात हमारे जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन असगर साहब जो हैं वो इसकी डिटेल बात हमें बताते हैं। और जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि जमात इस्लामी के धरने में अभी ये बताया गया कि मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जा रही है। यकीनी तौर पर हमें लगता है कि कमेटी बन चुकी है, शायद और शायद आवाम के लिए जो रिलीफ सामने आ सके। लेकिन जिस तरह हमारे सीनियर सहाफ़ी ने हमें बताया कि ये बच्चों का खेल नहीं, बहुत मुश्किल टारगेट है। देखते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान इसमें कितनी फ़ीसद कामयाब होते हैं या नहीं।